Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So 2 days ago, I posted a video asking your difficulties and where you are finding trouble in cracking the exam. Now we are tackling all these issues one by one, and I have placed these two videos already done on this topic in our playlist also, and that playlist link is also available in description. Now, third issue raised was lack of knowledge in current affair. Your question was, sir, from where we should cover the current affair, how we should cover the current affair, and what should be strategy to retain the current affair. These are the problems of some candidates. Now, reading current affair on daily basis as a habit is very necessary. The common mistake committed by people is they start current affair after result of pre. And too less time is left, you can't cover current affair. So current affairs should be your daily routine thing. Daily dedicate few hours, maybe 1 hour, 2 hour per day to current affair around the year. Because this current affair is going to help you in every competition. Whether you are going for banking exam, you are going for insurance exam, you are going for railway or SSC or any other competition. So make it a habit that you will remain updated. Current affair means are you updated or you are outdated. This is the only thing. So they need updated candidate. And that's why current affair plays very crucial role. A person who always keep update his knowledge is preferred one. So I have suggested you a very good source for current affair. It is a reliable source. Many year people are using and finding it very good. Link of that source is available in description. Click the link. You will reach at a app. Download the app. Take current year plan and apply coupon code AA03. You will have 10% off. Now you are provided with previous PDFs and latest PDFs. You will have daily PDF, weekly PDF, monthly PDF. Now this is your own convenience. Some people may find it easy to cover daily PDF. They can use it. Some people, they want to do weekly PDF. If you want to use weekly PDF, start from previous week. So first cover the previous weekly PDF, go to the then one earlier than that, and that way means go backward. And also cover the latest weekly PDFs that may come to you. And another way can be covered through monthly PDF. If you want to use monthly PDF, then start from the last available monthly PDF, then preceding it, and move backward. But normally we should cover 6 months current affair from the date of our examination. So now you are aware the date of main exam. Say some main exam is scheduled for say October. So now you know at least you have to cover from April. So subtract 6 months from the date of main examination. That should be period minimum you should cover. But more you cover, better it is. There is no standard rule that only 6 month current affair will come. It can be 7 month old, it can be 8 month old, it can be even 12 months old. Usually current affair word means the knowledge that has arisen within 12 months. That is the normal notion. And sometimes covering 12 months is very difficult. So usually people suggest cover 3 months, 6 months. But my suggestion is if you can cover 6 months, try to cover 7 months. If you can cover 7 months, try to cover 8 months. Then 9 months, even 10 months, 11 months, depending upon your capacity. But always focus on latest. That's why I suggest you go backward. So if exam is in October, then you must have knowledge about October, September, August, July, June, May, this way. You have to move backward. And as much as you can cover, that is better. And then comes how to retain it. Retention means repeated reading. Picking some bullet points from every and make notes of it. And you can do selective reading also. Because when you go on reading, you learn there are certain words that has no significance. You can skip that. You should develop the habit of fast reading. There is a video on that, how we can read more content in less time.
All these videos are available and I am sharing these videos time and again on our community. So keep a track on community. You will find these videos and almost on alternate day or third day basis, I am placing link of these videos. Those are crucial for you. You can watch those videos and this way you can learn current affair. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला जिसमें आपसे पूछा आपकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है। आपने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ बताई है, एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, वो प्लेलिस्ट में भी रख दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आज हम कवर कर रहे हैं एक मेजर इशू करंट अफेयर। काफ़ी लोगों ने कहा सर करंट अफेयर कितना करें, कब करें, कहाँ से करें, कैसे रिटेन करें, याद नहीं रहता है, क्या करें। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा सोर्स हमारे पास होना चाहिए। मैंने आपको एक सजेस्ट किया टाइम टेस्टेड सोर्स। काफ़ी सालों से लोग इस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन इस सोर्स से कवर हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। इसको आप, इसका लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में। इसको लिंक को क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, करंट ईयर का प्लान ले लें, कूपन कोड लगाएंगे AA03 10% ऑफ आ गया। अब आपके पास इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो पुराना मटेरियल मिल जाएगा सारा आपको इसके अंदर, साथ ही साथ डेली वीकली मंथली PDFs मिलेंगे। अब मुझे किससे कवर करना चाहिए करंट अफेयर? क्या मैं डेली PDF से करूं, क्या मैं वीकली PDF से करूं, क्या मैं मंथली PDF से करूं? ये आपकी अपनी कन्वीनियंस है। हर व्यक्ति का अलग अलग प्रेरोगेटिव है, अलग अलग स्टाइल है। मान लो आप डेली PDF से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ पुरानी डेली PDFs कवर कर लें और जो आगे आगे डेली PDF आती जाएंगी उसको कवर करते जाएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा, आप वीकली से करना चाहते हैं, जो प्रीवियस वीकली PDF है उससे पहले की है, उससे पहले की है और जो बाद में आएगी उसको करते जाएं। मंथली से करते जाना चाहते हैं तो पहले पिछली मंथ का कर लें, फिर उससे पिछले मंथ का कर लें, फिर उससे पिछले मंथ का कर लें, इस तरीके से कर लें। मीन्स हमें एक तरफ तो बैकवर्ड मूव करना है और एक तरफ हमें फॉरवर्ड मूव करना है। जब भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं हमें डेली करना है। पहली चीज़ तो ये है। काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, प्री का रिजल्ट आया फिर करंट अफेयर तैयारी शुरू करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। हमें रोज़ 1 घंटा 2 घंटा डेडिकेट करना है करंट अफेयर को। वो अपनी कन्वीनियंस के अनुसार आप डेडिकेट करिए, सुबह रखिए, शाम को रखिए, आपकी चॉइस है। मेरे टाइम शेड्यूल में इसका टाइम मैं आपको बाद में देता हूँ, शाम को देता हूँ, वो आपके ऊपर है जो आपको सूट करता है। कम से कम 6 महीने की करंट अफेयर रिकमेंड की जाती है, जरूर करनी चाहिए। 6 महीने किससे? मान लो एक मेन एग्ज़ाम अक्टूबर में है तो अप्रैल से अक्टूबर तो हमें कवर करनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप 7 महीने करते हैं और बेटर है, 8 महीने करते हैं और बेटर है, 9 महीने करते हैं और बेटर है, 10 महीने करते हैं और बेटर है, 11 महीने करते हैं उससे भी बेटर है, 12 महीने करते हैं उससे भी बेटर है। करंट अफेयर का मतलब होता है प्रीवियस 12 मंथ्स। तो 12 महीने तक यूजुअली करंट अफेयर आती है, पर अधिकांश क्वेश्चन लेटेस्ट होते हैं, क्योंकि वो क्या देखना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है कैंडिडेट अपडेटेड है या आउटडेटेड है। तो अपडेटेड कौन है? जिसको लेटेस्ट चीज़ें पता है। तो लेटेस्ट पे हमेशा फोकस होता है। तो लेटेस्ट पे फोकस का मतलब क्या है कि जो भी मेरा एग्ज़ाम है उसमें लेटेस्ट तो मुझे करके ही जाना है। अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर तो मुझे करना ही है, सितंबर भी करना है, ठीक है, और अगस्त भी करना है, फिर जुलाई भी करना है, जून भी करना है, फिर मई भी करना है, फिर अप्रैल भी करना है। मीन्स बैकवर्ड जाना है मुझे। अगर मैं आज से तैयारी कर रहा हूँ तो आज का तो करना ही है, मुझे पीछे भी जाना है और मुझे कम से कम उतने महीने कवर करने हैं जो एग्ज़ाम से मेरे को 6 महीने की कवरेज दे दें। ये हमें समझ के चलना है। कई लोग कहते हैं सर 3 महीने का ही आता है, मैं तो 3 महीने, आप कर लीजिए, तो आपकी इच्छा है। अगर आपके दूसरे दोस्त ने 4 महीने की पढ़ाई करी है तो उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे ना, और तीसरे दोस्त ने 5 महीने की करी है उसके और भी ज़्यादा आ जाएंगे, और एक और दोस्त है उसने 6 महीने की करी है उसके और नंबर आ जाएंगे। तो ये तो आपको देखना, आपको कम नंबर चाहिए कि ज़्यादा नंबर चाहिए। क्योंकि ये जो बहस है, मैं 3 महीने कर लूँ, मैं 4 महीने कर लूँ, मैं 6 महीने कर लूँ, इससे बाहर निकल जाइए। आपका कोशिश क्या होनी है, कितना मेरी क्या कैपेसिटी है और मैं कितना अधिक से अधिक कर सकता हूँ, ये आपका इंडेवर होना चाहिए। इसको आप बाउंडेशंस मत बनाएं, बाउंड्रीज मत बनाएं। काफ़ी बड़े बड़े सलाहकार होते हैं, अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं, उससे थोड़ा बचिए आप क्या करिए, अपना दिमाग लगाइए कि अगर मेरी नॉलेज मेरे कंपटीटर से ज़्यादा होगी तो मैं आगे हूँ और मेरी कम होगी तो मैं पीछे हूँ। सिंपल सी बात है। तो कंपटीशन वर्ड के अंदर कुछ भी सफिशेंट वर्ड नहीं है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर 6 महीने कर लूँ सफिशेंट है?
ये मटेरियल पढ़ लूँ सफिशेंट है। सफिशेंसी वर्ड कंपटीशन में है ही नहीं। आपको औरों से अधिक नॉलेज एक्वायर करनी है। आपका काम क्या होना चाहिए? रोज कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड करनी है। ये आपका एंडेवर होना चाहिए। 24 घंटे से 25 तो आप बना नहीं सकते हैं। 24 घंटे में कितना अधिक से अधिक अपना टाइम नॉलेज एक्विजिशन पर लगा सकते हैं, ये आपको करना है। और जो ये आर्ट समझ जाता है कि जो गिवन टाइम है उसको मैं कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करूं, वो आगे निकल जाता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं बताते आपको, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड सोर्सेज, बट फोकस स्टडी, ये आपको आगे लेके जाएगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।